Good morning to all of you. Class 7th, Subject Social Science, Chapter 5, Rulers and Buildings. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 65 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे Why were temples targeted? कि मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया। Why were temples targeted? Because kings built temples to demonstrate the devotion to God and their power and wealth. It is not surprising that when they attacked one another kingdoms, they often attacked one another's kingdom. They often targeted these buildings. In the earlier 9th century, when the Pandyan king Shirimara Shirivalba invaded Sri Lanka and defeated the king Sena I 831 to 851, the Buddhist monk and chronicle Dhammakiti noted, he removed all the valuables. The statue of the Buddha made entirely of gold in the jewel palace. And the golden image in the various monasteries. All this is seized. The blow to the pride of the Sinhalese rulers had to be avenged, and the next Sinhalese ruler, Sena II, ordered his general to invade Mathura, the capital of the Pandavas. The Buddhist chronicle noticed that the expeditions made special efforts to find and restore the gold statue of the Buddha. राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में ये बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा शिमर श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा के सेन प्रथम 831 से 851 को पराजित किया था, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार दमकिति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया। रतन महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखे सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिहली शासन के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिहली शासन सेन द्वितीय ने
अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में युद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। Similarly, in the early 11th century, when the Chola king Rajendra I built a Shiva temple in his capital, he filled it with prized statues seized from defeated rulers. An incomplete list included a sun pedestal from the Cholas, a Ganesha statue and several statues of Durga, a Nandi statue from the eastern Chalukyas, an image of Bhairava, a form of Shiva, and Bhariravi from the Kalingas of Odisha, and a Kali statue from the palace of Bengal. इस तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ें सम्मिलित थी: चालुक्यों में से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मुनियाँ, पूर्वी चालुक्य से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव तथा भैरवी की एक प्रतिभा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। सुल्तान Mahmud of Ghazni was a contemporary of Rajendra I. During his campaigns in the subcontinent, he attacked the temples of defeated kings and looted their wealth and idols. Sultan Muhammad was not a very important ruler at that time, but by destroying temples, especially the one of Somnath, he tried to win credit as a great hero of Islam. In the political culture of the Middle Ages, most rulers displayed their political might and military success by attacking and looting the places of worship of defeated rulers. तो गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राज्यों के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। तो आज बेटे यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं वो आपने लिख के याद करने हैं और इस चैप्टर को जो मैंने आज पढ़ाया है दोबारा रीड करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।